अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस्टोटल अंकल। आज जो है हमारा टॉपिक अलेक्जेंडर पोप है। हमारे पास ये राइटर जो है पोइट है। इसके बारे में क्योंकि इसके बाद जब हम रेप ऑफ द लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे नेचुरल मशीनरी जो है, सुपर नेचुरल मशीनरी जो है हमारे पास पोइम में, और इसके अलावा जो एज ए सेटोरिकल पोइम भी हम देखेंगे एज अ मोक एपिक पोइम। तो उसके लिए पोइट के बारे में जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो कौन था ये, कैसे था, सब कुछ शॉर्ट करके हमने ये नोट्स बनाए हैं। अलेक्जेंडर पोप, द इंग्लिश पोइट और एंड सेटरिस्ट अलेक्जेंडर पोप was the greatest poet and verse satirist of Augustan period. No other poet in the history of English literature has handled the heroic couplet with comparable flexibility and brilliance. एक तो एज सेटरिस्ट जो है, और एक जो इसका हीरोइक कपलेट है, ये दोनों चीज़ें मशहूर है इसकी ज़्यादा। हीरोइक कपलेट तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ही वॉज अनडिनाइबली स्किल्ड एट वर्स एंड his work is generally considered a major influence on English literature. He was very talented poet and translator of the neoclassical age. He was a great follower of the great ancient masters of Greek and Rome. He translated several works of the ancient masters into English language. He is also known as one of the most correct and accurate poets of English language in the world. Pope was born on May 27, 1688 in a middle-class Roman Catholic family in the heart of the city of London. When Pope was just 12 years old, his father retired from business and the whole family moved to Binfield in Windsor Forest. It was at this age that Pope contracted TB of the bones, which not only affected his normal growth but also caused the curvature of the spine. मतलब बैकबोन की जो ग्रोथ थी वो भी abnormal थी. He was the high priest of his age. Pope is a poet of high order and his contribution to English literature is as valuable as that of Shelley and Keats. Poetic diction इसका है. Poetic diction, what is poetic diction? Poetic diction means noble, pure, exalted diction fit for use in poetry meant for refined and cultured audience. In it, vulgar, archaic, and technical words were avoided. Pope and other poets of 18th century used some devices to achieve poetic diction. The first device was to use Latin words and Latin constructions. Thus Pope used soul in place of sun. आप रेप ऑफ द लॉ को अगर आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ने वाले हो आगे, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएंगी. The second device was to use periphrases, euphemisms, and elevated diction. Thus, Pope used velvet plane for a green table, two-handed engine or fatal engine for a pair of scissors, and so on. मतलब ये periphrases या euphemisms ऐसे तरीका होता है राइटिंग का कि किसी चीज़ को हम कभी कहते हैं एग्जिजरेट करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कहते हैं कि डायरेक्टनेस को अवॉइड करने के लिए जब हम लोग कुछ बात को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, ताकि आगे वाले को वो बात बिल्कुल ज़्यादा बुरी ना लगे. ठीक है, तो मतलब पोलाइटनेस के लिए पोलाइटनेस होनी चाहिए बात में, तो बात को आराम होती है बड़ी, उसमें मतलब बड़े सटायर होते हैं, बड़ा वो पोप जो है सख्त बात भी करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसके लिए ऐसे वर्ड्स चूज़ करता है, ऐसे तरीके से वो लंबे सेंटेंसेस या फ्रेजेस को थोड़ा सा लंबा कर देता है, जो कि एक बात मुंह पे सीधी भी की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको लंबा करके और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है कि बात जो है वो इतनी सख्त और बुरी नहीं लगती. अच्छा, the third device was to make an abundant use of figures of speech, especially of hyperbole and personification. He is the writer of the didactic verse. View of poetry, मतलब poetry के बारे में इसका क्या ख्याल था? Pope believed that the aim of poetry is to teach people various things. With this aim in view, he wrote his essay on criticism, moral essay, and essay on men. Essay on Man is best known, in which Pope discussed the relation of man to the universe, to himself, to society, and to happiness. तो मतलब
पोइट्री जो है पोप के लिए एक उसकी पोइट्री का एक ख़ास दर्जा था, क्योंकि उसको लगता है कि पोइट्री के थ्रू हम लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं या हम खुद सीख सकते हैं। फेमस कोट्स है उसके कुछ। ही इज़ द सेकेंड मोस्ट कोटेबल पोइट आफ्टर शेक्सपियर बिकॉज ऑफ हीज पर्न्ड एंड पॉलिश्ड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। हाँ, ये मैंने भी सुना था कई बार। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू हेड, टू इज़ human, to forgive divine, the proper study of mankind is man. Great poems उसकी क्या है? Pope is the most representative poet of the 18th century. Three of his greatest poems, the Dancier, the Rape of the Lock, ये हमने भी पढ़ा है। ऐसे ऑन मैन, इसके बारे में सुना ज़्यादा है ऐसे ऑन मैन के बारे में। स्टाइल जो है उसका क्या है कि पोप वॉज फेमस फॉर हीज विटी सटायर्स एंड एग्रेसिव बिटर क्वारल्स विद other writers. Sometimes Pope seems to be pointing his critical, sarcastic figure at human nature. There is a sense of duality in his style that praises his subjects on one level and criticizes them the next. That is why the ending is so fitting. His satire are jovial. मतलब satire उनके बहुत मुअज़्ज़ज़ होते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में। वही बात है कि वो डायरेक्टनेस उसमें नहीं होती, मुंह पे बात नहीं करता, तरीके से वो सटायर करता है सोसाइटी पर। हीरोइक कपलेट है, द हीरोइक कपलेट्स विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनहम एंड वोल्टर एंड पॉपुलराइज्ड बाय ड्राइडन वाज परफेक्टेड बाय पोप। मतलब यूज़ बहुत पहले भी हुआ था, ठीक है, चौसर ने भी यूज़ किया था, डेनहम और वोल्टर ने किया है, ड्राइडन ने किया है, लेकिन पोप ने इसको फिर क्या किया, इसका यूज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। और ये है क्या हीरोइक कपलेट? अ कपलेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 rhymed lines of iambic pentameter and written in an elevated style. These couplets followed stressed and unstressed syllable. For example, तो हमारे पास जो पर्पल में होगा वो स्ट्रेस्ड है और अनस्ट्रेस्ड जो है वो ग्रीन में है। और ये जो है इसकी एक पोएम की लाइन है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दी। पता नहीं मैंने कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता स्ट्रेस और अनस्ट्रेस कैसे पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये मतलब जो सही पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि ये सही है, ठीक है। अच्छा, द टर्म हीरोइक कपलेट्स कम्स इन 17th century used to express or glamorize the heroic deeds. For the first time, Chaucer uses it in the Legend of Good Woman, but the use of heroic couplet didn't become widespread until the 17th century. The heroic couplet was popularized and highly developed by the neoclassical poets, especially Alexander Pope. In the hand of Pope, it acquired a perfection and correctness which left Dryden far behind and which could not be approached by any of his contemporaries and successors. तो ये हमारे पास पोप था। आई होप कि इसके बारे में थोड़ा सा आपके पास नॉलेज आ गई होगी। मतलब ये सारे पॉइंट्स है उसके बारे में, तो आप लोग हर पॉइंट को ज़्यादा डिटेल से भी पढ़ सकते हो। है बहुत सारे नोट्स, अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बाकी मैं चाह रही थी कि अगर हम इसके पोएम के जो एपिक पोएम है उसके क्वेश्चन करें तो आप लोगों को राइटर के बारे में थोड़ा सा पता हो, मेरी तरफ से पता हो। शायद आप लोगों को पहले से भी पता हो, लेकिन ये मेरी तरफ से भी कुछ हो। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।